रखेंगे हितेश जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सीधे दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वडोदरा पहुंच चुके हैं और औपचारिक स्वागत के बाद प्रधानमंत्री अब सीधे वडोदरा में आप देख सकते हैं सीधे दृश्य। वहां पर वो नवनिर्मित अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे कुछ ही देर में। सीधे आप दृश्य देख रहे हैं वडोदरा से। बेहद ही महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम जो है प्रधानमंत्री का आज का ये माना जा रहा है। Right, in a short while from now, he will be taking a walk through that new facility, and Prime Minister there. It's his first visit to Vadodara after he assumed office in May 2014. In fact, and it's the second eco-friendly, the second green terminal, international terminal, to be inaugurated in India. The first was at Chandigarh. जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि ये जो आज नवनिर्मित अत्याधुनिक अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल होगा, ये गुजरात का पहला और चंडीगढ़ के बाद देश का दूसरा ग्रीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाएगा। इस टर्मिनल के निर्माण पर करीब 160 करोड़ का खर्चा आया है। इसकी क्षमता प्रति घंटे 500 घरेलू और 200 अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की है और ये 17,500 वर्ग मीटर में बना है। इसके साथ ही पीएम मोदी आज वडोदरा में ही दिव्यांगों को सहायता किट भी बांटेंगे और दिव्यांगों की तरफ विशेष ध्यान दे रही है मोदी सरकार। इसका ये एक और अगला महत्वपूर्ण कदम होगा। आप सीधे दृश्य देख रहे हैं वडोदरा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का ये दौरा। Right, and he is there flanked by the Chief Minister of the state, who greeted him at the airport with flowers, and there, as we told you earlier, he will be taking a walk through that facility, the new terminal building. It's the country's second eco-friendly terminal, airport terminal. और देख सकते हैं सीधे दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। बेहद भव्य ये बनाया गया है और हमारे साथ चर्चा के लिए विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हितेश जी, जिस तरह से हम बेहद भव्य ये टर्मिनल बनाया गया है, अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है और कहीं ना कहीं प्रगति का सूचक भी है और इस पर हम बात करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री लगातार वहां पर जायजा ले रहे हैं। कुछ ही देर में इस टर्मिनल का प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। Right, when we talk about the kind of facilities, Mr. Iyer, that will be provided, it puts this airport terminal at one with major international terminals across the world. And also the fact that it is being called a green terminal. So, Right. So green terminal means there will be a lot of energy conserving measures, so that the natural daylight is used to illuminate the operational area, as well as Recycled even materials. other facilities including heating systems, and these are all done in such a way that energy consumption is lowest. So green terminal, as it was earlier mentioned, the first one was in Chandigarh, this is the second one, and the idea is that these new facilities not just serve the passengers in terms of more check-in counters and all that, but they offer a quality of service which will be a model for other airports to follow. Right, and also preservation of the environment in various ways. For instance, noise pollution is a major problem that most airports have to deal with. Does this airport provide for a reduction of that in different ways? Yeah, because one is the noise level, and also the other thing which is air quality levels, pollution level, and the other thing is what people are today looking at modern airports is the airports are not just places where people come to board, take their flights. These are facilities where people get to do even their, particularly in a moving economy where you have several business people using these facilities. So they have to provide all modern things. Right. In terms of their work, in terms of facilitation, and eventually, airports could also become ultimately convention centers, business places where business conferences can be held.
it becomes a hub of economic activity. Right. In that way, Mr. Shankar, can we say that the Prime Minister's vision, it is very far advanced when we compare the when we compare facts. For instance, this terminal, it's happening in 2016. And major world terminals that have declared themselves to be green, they just happened maybe just 10 years back. आज जो बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भारत का जो आग्रह है उसका रंग दिखने लगा है। मैं दुनिया में अलग अलग जगह पर लोगों से मुझे ऐसी प्रतिक्रियाएं मिली कि वहाँ के लोग जब आते हैं तो T3 उन्हें पहली नज़र में प्रभावित करता है। Right. और ये खाली T3 का एक बड़ा होना, दिल्ली में होना ऐसा नहीं है। एक तो खुलापन है, दूसरा उसके साथ भारतीय स्थापत्य को प्रदर्शित करते हुए उसके पीछे की जो दर्शन है उसे स्थापित करते हुए हमारे प्रतीक चिन्ह भी हैं। तो हम जो काम करते हैं उसके पीछे कोई सोच होती है। अब जैसे चंडीगढ़ के बाद ये बना है तो पर्यावरण की रक्षा के लिए अगर किसी संस्कृति में सबसे ज़्यादा सम्मान दिया गया है, नदियों को, पेड़ों को पूजनीय माना गया है, वो देश पर्यावरण के लिए आग्रह करता है तो बात अलग बन जाती है। और ख़ास तौर से ऐसे परिदृश्य में जब पेरिस जलवायु समझौते की बात हो रही हो तो भारत जैसे देश जो सदियों से जो संस्कृति ही पर्यावरण को बचाने वाली है। और प्रधानमंत्री जी ने जैसे कहा, आपका एक सवाल था कि क्या ये सिर्फ परिवहन तक सीमित रह जाने वाली बात है? नहीं। स्मार्ट सिटीज़ की जब बात हुई थी तो मुझे ध्यान है कि दिल्ली में NDMC का केदारनाथ साहनी सभागार जो है वहाँ पर एक प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जी हितेश जी, हम चर्चा आपसे जारी रखेंगे और प्रधानमंत्री कुछ ही देर में अभी इसका उद्घाटन करने वाले हैं अंतर्राष्ट्रीय इको टर्मिनल का, जो कि देश का दूसरा इको टर्मिनल होगा। कुछ ही देर में हम सीधे अपने दर्शकों को वहां पर ले चलते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं सत्कार करें। स्वागत एवं सत्कार हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत सारी तालियों के साथ हम इसमें जुड़ेंगे। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी से अनुनय करते हैं कि आप माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं सत्कार करें। मुख्यमंत्री श्री विजय भाई रूपाणी जी के वरद हस्तों से स्वागत। धन्यवाद। अब माननीय केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री P अशोक गजपति राजू जी से अनुरोध करते हैं कि कृपया आज के इस गौरवशाली अवसर पर सभी के स्वागत में अपने भावों को शब्दों में व्यक्त करें। Our most respected Pradhan Mantri ji, Honorable Governor of Gujarat Kohli ji, Honorable Chief Minister Vijay Rupani ji, my colleague from the Ministry Jayant Sinha ji, Honorable Ministers, Members of Parliament, Members of State Legislature, senior officers from the Government of India and state governments, friends and media, distinguished ladies and gentlemen. On behalf of the Ministry of Civil Aviation, I express my deep gratitude and extend a hearty welcome to our beloved and dynamic Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here today to inaugurate the new integrated terminal building at the airport. Your presence inspires and motivates us, sir, and it is a fitting tribute for this state-of-art facility to be dedicated to the nation by you. I extend a warm welcome to all of you who are here amongst us today to witness this memorable inauguration event. Your constant encouragement is a force multiplier for us. Prime Minister, sir, ever since the NDA government took over, aviation sector in India has recorded a phenomenal growth.
We are today known in aviation as the land of 20% growth, a feat unmatched by any of the major economies in the world. We are currently the 9th largest aviation market, and under your able vision and guidance, are on track to becoming the 3rd largest by 2022. The recently announced National Civil Aviation Policy, which is the first such integrated policy since independence, has given a further fillip to this growth momentum by introducing numerous steps for ease of doing business, affordable flying, doing away with the 520 rule, open skies, skills upgradation are certain revolutionary steps which our government has undertaken with your blessings to take flying to the next level in India. It is estimated that every 100 rupees spent in the aviation sector leads to overall returns worth 325 rupees to the economy. Airports today are not only connecting platforms, but are complete ecosystems in themselves. They promote connectivity, catalyze economic growth, provide employment, and demonstrate the cultural mosaic of the region. Vadodara is the 3rd largest city of the state and the gateway of the Golden Quadrilateral. It is one of the cities selected to be developed as a smart city and is an important industrial, cultural, and educational hub of the state. It is therefore only appropriate that this Kala Nagri of Gujarat was provided with this modern facility. Sir, this is a new terminal building, has an area of 17,500 square meters and has been constructed at a cost of 160.20 crores. It is capable of handling more than 700 passengers at a time. The terminal has been designed and constructed with environment-friendly and sustainable technologies. Further, in the aviation infrastructure, an investment of 15,000 crore in the public sector and an investment of 30,000 crore in the private sector is planned in the next few years. In Gujarat, we are also taking up runway extension and new terminal building works at Bhavnagar, cargo terminal and runway extension at Surat, and a new technical block and control tower at Ahmedabad Airport. Several airports in the state will also benefit immensely from our regional connectivity scheme, for which Gujarat has become the 2nd state in the country to sign an MOU with the Ministry of Civil Aviation. On your behalf, sir, I assure the state of all possible support and cooperation from the Ministry of Civil Aviation and aviation-related aspects. With these few words, I once again welcome the august gathering present here to be part of this inauguration function of this new terminal building. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अनुरोध करते हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री पी अशोक गजपति राजू जी से कि आप माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को शीला पट्टिका के अनावरण के लिए आदरपूर्वक निवेदन करें। आज वडोदरा के लिए इस नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी अपने कर कमलों से करने जा रहे हैं। हम सब के लिए ये गौरवशाली दिवस है। आप सबकी तालियों की गर्जना के साथ इस उद्घाटन में जुड़ते हैं।
आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस भवन के निर्माण से जुड़े सभी को बहुत बहुत बधाई। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्पेशली हम सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। राष्ट्रीय स्वाभिमान को जागृत करने वाले, देश को नई पहचान देने वाले, जन से मन की बात करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी से आदरपूर्वक निवेदन करते हैं आपके प्रासंगिक उद्बोधन के लिए। તમારા બધાના ઘોડા ગોઠવાઈ ગયા હોય તો ઘોડેશ્વરો બેસી જાય જરા. હું આગો પાછો નથી થવાનો. બેસો, થાકે હશો. मंच पर विराजमान गुजरात के गवर्नर श्रीमान ओम प्रकाश कोहली जी, गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी जी, उप मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल, केंद्र में मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान अशोक गजपति राजू जी, जयंत सिन्हा जी, यहाँ की सांसद श्रीमती रंजनबेन, इस क्षेत्र से विधायिका मनीषा बहन, राज्य सरकार के मंत्री श्रीमान राजेंद्र जी, विभाग के सचिव श्रीमान RN चौबे जी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर गुरुप्रसाद महापात्र और उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, दो 2014 मई महीने में प्रधानमंत्री के रूप में आप सब ने मुझे कार्य का जिम्मा सौंपा था और कुछ ही समय में दो महत्वपूर्ण काम, उसमें एक था जिसके लिए गुजरात 5 दशक से इंतजार कर रहा था, संघर्ष कर रहा था, कठिनाइयां झेल रहा था। उस सरदार सरोवर डैम की हाइट बढ़ाने का काम सरकार में आते ही तुरंत पहला काम, शुरू के दिनों में जो काम की उसमें एक था सरदार पटेल के नाम पर बनी हुई सरदार सरोवर योजना को, उसकी ऊंचाई बढ़ाने के काम को अनुमति देना। और मैं गुजरात सरकार को अभिनंदन करता हूं कि जिस तेज गति से इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं, मुझे विश्वास है कि समय सीमा से शायद कुछ दिन पहले इस काम को गुजरात सरकार पूरा कर देगी। दूसरा,
इस एयरपोर्ट के निर्माण का काम ये भी 2014 के जून जुलाई में इसका कार्य आरंभ कर दिया गया और आज हिंदुस्तान के जो गणमान्य एयरपोर्ट गिने जाएंगे उसमें एक एयरपोर्ट बड़ोदरा का भी माना जाएगा। इन दिनों भारत सरकार स्थापत्य के क्षेत्र में जो कुछ भी काम करते हैं उसमें एक बात पर बल दिया जाता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, इकोसिस्टम का ख्याल रखा गया हो। मुझे खुशी है कि भारत में नई सरकार बनने के बाद 2 एयरपोर्ट एक प्रकार से ग्रीन मूवमेंट का हिस्सा बने हैं। एक एयरपोर्ट अभी अभी उद्घाटन किया कोची में, केरल में, और दूसरा आज बड़ोदरा का राष्ट्र को समर्पित हो रहा है। जीरो डिस्चार्ज, वेस्ट टू वेल्थ, एनर्जी सेविंग, एनवायरमेंट फ्रेंडली, एक प्रकार से। और जब इस प्रकार के आइकॉनिक बिल्डिंग तैयार होते हैं तो सामान्य जनता को भी इस प्रकार के काम के लिए उत्साह बढ़ता है। प्रारंभ में जो चीजें ज्यादा कॉस्टली होती हैं, लेकिन एक बार अगर सरकार इंटरवेंशन करे और शुरुआत कर दे तो सामान्य नागरिक के लिए भी वे आर्थिक रूप से कम दाम में तैयार होते हैं। एक समय था कि कोयले से चलने वाले बिजली का कारखाना, तो उसके अगल बगल में कोयले की ऐश का, कोयले की राख का ढेर लगा रहता था और बिजली के कारखाने से बड़ा ढेर कोयले की राख का होता था और कोयले की राख उठाने के लिए पैसे देने पड़ते थे। और अगल बगल में जो लोग मकान बनाया होता था वो चिल्लाते रहते थे कि भाई ये हटाओ, हम तो मर जाएंगे। इस बिल्डिंग में जो ईंटों का उपयोग हुआ है, ब्रिक्स का उपयोग हुआ है, उस कोयले की ऐश से बनी हुई ईंटों का उपयोग हुआ है। उससे स्ट्रेंथ भी मिलती है और जो वेस्ट जिसको हटाने का खर्चा करना पड़ता था वही यहां काम में लाया गया है, एनवायरनमेंट की रक्षा की गई है। भारत में एविएशन सेक्टर बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ बहुत तेजी से है और अब मध्यम वर्ग के परिवार को भी उसका भी मन करता है, अब ट्रेन में जाना अच्छा नहीं लगता। रिश्तेदार पूछेंगे अरे ट्रेन में आए, तो उसको लगता है नहीं नहीं हवाई जहाज में जाए। एक प्रेस्टीज से जुड़ने लग गया है हमारे देश में। एक अनुमान है कि भारत के एयरपोर्ट पर 5 साल के भीतर भीतर ये स्थिति होगी कि अमेरिका की जितनी जनसंख्या है उतने लोग हमारे देश में साल भर में एयरपोर्ट पर होंगे। यानी आप कल्पना कर सकते हैं कि सेक्टर कितना आगे बढ़ने वाला है। शायद भारत बहुत ही निकट भविष्य में
दुनिया का तीसरे नंबर का देश बनेगा जहां एयरपोर्ट एक्टिविटी के मानकों को पार कर जाएगा। इससे रोजगार की संभावनाएं बढ़ने वाली है। इसके कारण आर्थिक कारोबार को गति आती है और देश आजाद होने के बाद पहली बार इस सरकार ने अलग से एविएशन पॉलिसी बनाई है। हमारे देश में विमान उड़ते थे, एयरपोर्ट बनते थे, विमानों की खरीद बिक्री होती थी, लेकिन देश की कोई एविएशन पॉलिसी नहीं थी। और इसलिए 5 साल में इसको कहां पहुंचाना है, 10 साल में कहां पहुंचाना है, देश के सामान्य मानवीय की रिक्वायरमेंट के लिए क्या करना है, उसका कोई विजन नहीं था। चलता था, बढ़ता था तो बढ़ता था, रुका था तो रुका था, ये था। और उसके तहत ये देश बहुत विशाल है। 80-100 एयरपोर्ट से इतना बड़ा देश चलाने के लिए अगर हम सोचते हैं तो हम देश की विकास यात्रा में रुकावट पैदा करते हैं। टायर 2, टायर 3 सिटी, इनमें भी उतना ही पोटेंशियल होता है अगर उनको एविएशन सेक्टर का लाभ मिले तो देश की विकास यात्रा के नए आयाम खुल सकते हैं। और इसलिए इसको प्रमोट करने के लिए 500 किलोमीटर के हिसाब से 2500 रुपये की टिकट, ताकि दूर सुदूर किसी को नागालैंड जाना है, किसी को अरुणाचल जाना है, किसी को मिजोरम जाना है, किसी को अंडमान निकोबार जाना है, किसी को लक्षद्वीप जाना है, किसी को कच्छ जाना है, केशोद, भावनगर, जूनागढ़ जाना है। ऐसे क्षेत्र जहां आज ट्रैफिक नहीं मिलता है, पुराने जमाने की एयर स्ट्रिप बनी पड़ी है, तो एक बहुत बड़ी मात्रा में एक्सपेंशन का एक मिशन मोड पे काम लिया है और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे काम होने वाला है। और उसके तहत देश में, क्योंकि आज दुनिया जिस प्रकार की है उसमें कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा महत्व है। फिजिकल कनेक्टिविटी भी चाहिए, डिजिटल कनेक्टिविटी भी चाहिए। अगर हाईवे चाहिए तो हाईवे भी चाहिए, हाईवे की जरूरत है तो इंफॉर्मेशन बेस की भी जरूरत है। उसी प्रकार से एयर ट्रैफिक की भी उतनी भी आवश्यकता है। टूरिज्म सेक्टर में आज जो रिक्वायरमेंट्स है उसमें एक एयर सेवा की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है। भारत के टूरिज्म ग्रोथ तेज गति से बढ़ रहा है, संभावनाएं अपार है। अगर हम नागरिकों को डेस्टिनेशन पर जाने की सुविधा देते हैं तो डेस्टिनेशन पर वो 2 दिन 3 दिन ज्यादा रहता है, ज्यादा दिन रहता है तो ज्यादा खर्चा करता है, ज्यादा खर्चा करता है तो वहां की इकोनॉमी को बहुत बड़ी ताकत मिलती है। तो इन ए वे एयर ट्रैफिक से मल्टीपल इकोनॉमिकल इफेक्ट होती है। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए एविएशन सेक्टर को बढ़ावा देने का प्रयास वर्तमान सरकार ने किया है। बड़ौदा वासियों को ये नया नजराना आज मिल रहा है। मुझे विश्वास है कि बड़ौदा की एक अपनी पहचान तो है ही है, उस पहचान में एक 4 चांद लगाने का काम ये व्यवस्थाएं करेगी। बड़ौदा एक संस्कारी नगरी के रूप में जाना जाता है, लेकिन साथ साथ बड़ौदा शिक्षा का भी हब है। टेक्निकल एजुकेशन में बड़ौदा ने अपनी एक जगह बनाई है। बड़ौदा और विद्यानगर
उस दिशा में काफी उन्होंने काम किया है। इन बातों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने एक बहुत अहम फैसला लिया है और जिसका असर आने वाली पूरी शताब्दी पर रहने वाला है। 100 साल तक जिसका इंपैक्ट रहने वाला है, ऐसा एक महत्वपूर्ण निर्णय किया है। वो निर्णय है बड़ोदरा में देश की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी। पूरा विश्व रेलवे के क्षेत्र में अगर 100 नंबर पे पहुंचा है तो हिंदुस्तान 10 नंबर पे खड़ा है। आज भी हमारे डिब्बे, उनकी गति, वो झंडी फहराने वाला, वो सब ऐसा ही है। दुनिया बदल चुकी है, बहुत इनोवेशन हुए हैं। पुरानी रेल है लेकिन उसको आधुनिक टेक्नोलॉजी, इनोवेशन के द्वारा भारत की रिक्वायरमेंट के अनुसार बदला जा सकता है। उस काम को प्राथमिकता देने के लिए भारत सरकार ने, भारतीय रेलवे ने बड़ोदरा को चुना है। इस वर्ष बड़ोदरा रेलवे यूनिवर्सिटी, ये हिंदुस्तान की पहली यूनिवर्सिटी आपकी इस बड़ौदा नगरी में बनने वाली है। उससे आप कल्पना कर सकते हैं कि आप कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन अब बड़ोदरा देश को करने वाला है। तो आज के अवसर पर आपसे मिलने का मुझे अवसर मिला। मुझे इसके बाद एक और कार्यक्रम के लिए जाना है। मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। इतनी बड़ी संख्या में आप आए, मुझे आशीर्वाद दिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आज वडोदरा महानगर की एक बहुत सुंदर उपहार मिला है इस नए एकीकृत टर्मिनल के रूप में। निवेदन करते हैं केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री श्री पी अशोक गजपति राजू जी से कि आप माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एक स्मृति चिन्ह आभार स्वरूप भेंट करें। आप सब आपकी करतल ध्वनि के साथ इस अवसर पर हम सबके साथ सम्मिलित हो। यह अवसर हम सबकी यादों में बसेगा। यह स्मृति चिन्ह आभार स्वरूप माननीय प्रधानमंत्री महोदय को। इस महत्वपूर्ण दिवस को हम सभी की स्मृति में कायम रखने के लिए एक छवि चित्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को करबद्ध निवेदन करते हैं। फोटो सेशन। कोटि कोटि धन्यवाद। एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से हम आभारी हैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के यहाँ आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए। आपके प्रति हमारा आदर, हमारे प्रति आपका स्नेह सदा ही बना रहे। सभी गणमान्य महानुभाव एवं अतिथिगण के भी बहुत आभारी हैं। आप सभी को सुरक्षा हेतु आपका स्थान बनाए रखने के लिए निवेदन है। आप सभी को कृपया निवेदन है, आपका स्थान बनाए रखिए सुरक्षा के कारणों से। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप सभी के बीच में आप देख सकते हैं उनका हम सबके प्रति स्नेह। तो आप देख रहे थे सीधे दृश्य, सीधा प्रसारण वडोदरा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के दूसरे ग्रीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि ये केवल एक हवाई टर्मिनल नहीं है बल्कि अनेक क्षेत्रों में भी असीम संभावनाएं हैं, चाहे वो पर्यटन के क्षेत्र में हो, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र में हो, आर्थिक प्रगति की दिशा में, अत्याधुनिकीकरण की दिशा में, और एक वर्ल्ड क्लास जो सुविधाएं हैं वो देशवासियों को मुहैया कराने की दिशा में, देश को प्रगति की
दिशा में आगे ले जाने की जो मुहिम है उसकी दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। बेहद महत्वपूर्ण ये समारोह जहां पर प्रधानमंत्री ने आज देश के दूसरे ग्रीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया और इसे बेहद महत्वपूर्ण बताया विकास की दृष्टि से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर। शेखर जी, प्रधानमंत्री ने जिस तरह से इसे विकास की गति को एक और नया आयाम देने की कोशिश की और बहुत